میں ہندی کے ذریعے اردو سیکھنے کے اپنے پارٹ یا سبق میں حمزہ کے استعمال کے متعلق حمزہ کے استعمال کے بارے میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں، لیکن حمزہ کے استعمال کے بارے میں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے آج کا یہ سبق حمزہ کے استعمال کے بارے میں الگ سے بنایا جا رہا ہے۔ حمزہ کے استعمال کے بارے میں آپ کو ہم اپنے لیسنس میں، اپنے پاٹھوں میں، اپنے اسباق میں پہلے بھی بتلا چکے ہیں، لیکن حمزہ کے استعمال کے بارے میں کافی لوگ بار بار سوال کرتے ہیں، اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ حمزہ اس میں ہے کیا۔ حمزہ جب اردو کے کسی لفظ میں، کسی شبد میں دو بار الف آتا ہے یا الف کی آواز آتی ہے تو بعد کا الف جو ہے وہ غائب ہو کر حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے آ اور یہ ہے اے، تو یہ کیا ہوا؟ آئے، آئے۔ اب الف یہاں بھی ہے اور الف یہاں بھی ہے، یہ دو بار ساتھ ساتھ الف آیا ہے، تو یہ الف غائب ہو جائے گا اور اس کی جگہ حمزہ آ جائے گا، اس کی جگہ حمزہ آ جائے گا۔ اب یہ الف ہٹ گیا، لیکن الف جو ہے یہ یہاں سے تو ہٹ گیا، لیکن الف کو بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ چاہیے، تو یہ کہاں، اب یہاں کہاں بیٹھے گا؟ ظاہر ہے بڑی یہ کے اوپر بیٹھے گا، تو یہ دیکھیے ہو گیا آئے، الف مد آ، حمزہ بڑی یہ آئے۔ یہ الف جو تھا وہ حمزہ میں بدل گیا، کیونکہ الف اس میں دو بار آ رہا تھا۔ آئے، آئیے دوسرا لفظ دیکھیں، دوسرا شبد دیکھیں، الف مد آ اور الف چھوٹی یہ ای، آئی، آئی، آئی۔ اب یہ دو بار آ رہا ہے الف، تو یہ بعد والا الف حمزہ میں بدل جائے گا، یہ بدل جائے گا حمزہ میں، آئی، آئی۔ تو اب یہ کیا ہو گیا، کیا شکل بنی اس کی؟ آئی، آئی، الف مد آ، حمزہ چھوٹی یہ آئی۔ آئیے دیکھتے ہیں، اسے پڑھیے، جیم الف جا اور الف واو او، جاؤ۔ اب دو بار الف آ رہا ہے، ایک الف یہ حمزہ میں بدل گیا، اب جیم الف سے مل جائے گا، الف کے بعد کوئی اس سے حرف ملتا نہیں، اس لیے واو ہے، اور حمزہ جو ہے واو پر آ جائے گا، جاؤ، جیم الف جا اور حمزہ واو او، جاؤ، جاؤ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، الف مد آ اور الف واو او، آؤ، الف مد آ، الف واو او، آؤ۔ الف دو بار آ رہا ہے، اس لیے یہ الف غائب ہو گیا اور اس کی جگہ حمزہ نے لے لی، آؤ، آؤ، الف مد آ، حمزہ واو او، آؤ۔ اسے پڑھیے، ایک الف یہاں پر چھوٹ گیا، چھ الف چا، چھ الف چا اور الف بڑی اے، چھ الف چا اور الف بڑی اے، چھ الف چا اور الف بڑی اے، چائے۔ تو یہ الف، دوسرا والا الف جو ہے یہ حمزہ میں بدل گیا،
चाय, 6 अलिफ हमजा बड़ी ये, चाय, चाय, 6 अलिफ हमजा बड़ी ये, चाय। जीम अलिफ जा, और अलिफ ये और ये, जीम अलिफ जा, अलिफ ये, जा ई ये, जा ई ये, जा ये, जीम अलिफ जा। अब ये अलिफ हट गया और इसकी जगह हमजा आ गया। अब ये क्या हो गया, जाइए, 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 जीम अलिफ जा, हमजा, एक ये है बीच वाला, ये है जिसके 2 नुक्ते हैं रखे हुए हैं, और फिर आखिर में है दूसरा ये आखिर में, इसलिए ये पूरा बनेगा जाइए। एक ये हो गया और एक ये हो गया, जाइए, जाइए, ये जाइए, जाइए। अब और लफ्ज़ देखें और शब्द देखें। नून है अलिफ नहा और हमजा अलिफ वाव ओ, नहाओ। नून है अलिफ नहा, अलिफ वाव ओ, नहाओ। तो ये दूसरा अलिफ जो है ये हट गया, इसकी जगह हमजा आ गया। तो नून है अलिफ एक साथ मिला दिया जाएगा। अलिफ के बाद कोई अक्षर, कोई हर्फ उससे मिलता नहीं है, इसलिए वाव, हमजा और वाव अलग से लिखा जाएगा। नहाओ, 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 नहाओ। अब देखिए एक लफ्ज़ है नई, उसमें नून है, अलिफ है और छोटी ये है नई। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर अलिफ 2 बार चूँकि नहीं आया है, इसलिए ये अलिफ हमजा में क्यों बदलेगा। अब देखिए नून पर ज़बर है, नून पर ज़बर है, तो यहाँ इसकी आवाज़ नून की क्या होगी, ना, ना, नून ज़बर ना, नून ज़बर ना। यहाँ आ की आवाज़ इसके साथ मिली हुई है, आ की आवाज़ इसके साथ मिली हुई है। अलिफ ज़बर आ, नून ज़बर, अब नून ज़बर ना, आ, इसकी आवाज़ उसके साथ मिली हुई है। तो अभी शायद ठीक से आपकी समझ में नहीं आया। आइए हम एक और लफ्ज़ लेते हैं समझने के लिए इसे। जब किसी हर्फ पर, किसी अक्षर पर ज़बर होता है, इसका मतलब है कि अलिफ उसके साथ मिला हुआ है। जैसे नून ज़बर ना, काफ ज़बर का, मीम ज़बर मा। नून ज़बर ना, काफ ज़बर का, मीम ज़बर मा। अभी शायद आपको कुछ समझने में परेशानी हो रही है, तो आइए इससे एक शब्द बनाते हैं, एक लफ्ज़ बनाते हैं। ये क्या है, नमक, नून मीम काफ, नमक। अब आइए इसकी हिज्जे करें।
हिचे जब इसकी आप करेंगे नमक की, तो कैसे करेंगे हिचे? नून ज़बर ना, मीम ज़बर मा, काफ साकिन। नून ज़बर ना, मीम ज़बर मा, काफ साकिन। काफ साकिन से मतलब होता है कि इस पर जज़म है, इस पर ज़बर नहीं है, क्योंकि अगर इस पर भी ज़बर होता तो इस लफ्ज़ का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़ होता नमका, नमका। इसका मतलब ये है कि जिस तरह ये नून ज़बर ना, मीम ज़बर मा, इसकी जो आवाज़ आ रही है वो का की आवाज़ उस तरह नहीं आ रही, क्योंकि अगर उसी तरह की आवाज़ होती तो इसका उच्चारण होता नमका, नमका, लेकिन ये नमक है। और जज़म की वजह से ये का के साथ जो का के साथ आ नहीं जोड़ा है। अगर इस पर ज़बर होता तो इसके साथ भी आ जुड़ जाता, तो ये होता, तब ये होता नमका, नमक है। तो इसलिए जिस अक्षर पर, जिस हर्फ पर ज़बर होता है, इसका मतलब ये है कि उसके साथ आ की आवाज़ मिली हुई है। अब आइए फिर इस शब्द पर आए। नून ज़बर न, हमज़ा छोटी ये ई, नई। अब नून ज़बर न इसका मतलब है आ इसके साथ मिला हुआ है, आ इसके साथ मिला हुआ है। तो एक अलिफ पहले है, एक अलिफ की आवाज़ आ रही है पहले ना, चूँकि इसके साथ मिला हुआ है, और फिर दूसरा अलिफ ये है नई, तो ये अलिफ हट गया और इसकी जगह हमज़ा आ गया, नई, नई। अब कैसे लिखेंगे मिलाकर इसे? नई, नून हमज़ा छोटी ये, नई, नई। आइए एक और शब्द लेते हैं, एक और लफ्ज़ लेते हैं। कई, काफ ज़बर का, अलिफ छोटी ये, कई। क्योंकि काफ पर ज़बर है इसलिए अलिफ इसके साथ, इसका मतलब है अलिफ इसके साथ मिला हुआ है, कई। तो दूसरा अलिफ जो है ये हट गया और इसकी जगह हमज़ा आ गया, ये हो गया कई, काफ हमज़ा छोटी ये, कई। मीम ज़बर मा, अलिफ छोटी ये, ई। मीम ज़बर मा है, मीम पर ज़बर है, इसका मतलब है अलिफ इसके साथ मिला हुआ है, मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा। तो ये दूसरा अलिफ जो है ये हट जाएगा और इसकी जगह हमज़ा आ जाएगा, मई, मई, मई। अब आइए देखते हैं, गाफ ज़बर का अलिफ बड़ी ये, गाफ ज़बर का अलिफ बड़ी ये, ए, गए, गए, गए। गाफ ज़बर गा, यानी अलिफ गाफ के साथ मिला हुआ है, तो दूसरा अलिफ जो है वो हट गया और इसकी जगह आ गया हमज़ा, गए। गाफ ज़बर का हमज़ा बड़ी ये, गए, गए। लाम काफ दो चश्मे है, लख, नून ज़बर ना, अलिफ वाव ऊ। अब नून पर ज़बर है, इसका मतलब है कि अलिफ इसके साथ मिला हुआ है, तो ये बाद वाला अलिफ हट जाएगा और ये हमज़ा में बदल जाएगा। अब देखिए ये लिखा हुआ है लखनऊ, लखनऊ। लाम काफ दो चश्मे है, नून हमज़ा वाव, लखनऊ।